اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایک ورشپ کی یہ لائن گاؤ، اپنے منہ سے اقرار کرو کہ ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نام نہ بدلے گا۔ فائر ایک لائن کو گائیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنے منہ سے اس نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام کو پکاریں اپنی لائف کے اوپر، اس کے پکاریں اپنی بیماری والی جگہ کو، اپنی بیماری کو یاد کر کے، اپنے حالاتوں کو یاد کر کے، اپنے گھرانے کو یاد کر کے یسوع کے نام کو پکارو، ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ چیز بدل جائے گی، آنکھوں کو بند کریں سب اور ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یسوع نام نہ بدلے گا، ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نام نہ بدلے گا۔ اس کی ذات اور اس کے کام اور پاک کلام نہ بدلے گا۔ آمین۔ اس کی ذات، اس کا نام اور اس کا کلام نہ بدلے گا۔ زور سے تعریف کرو یسوع مسیح کے بزرگ نام کے لیے، زور سے طاقت کے ساتھ 7 بار ہاللویا بولتے ہوئے، چلا کے جیسس بولو، تھینک یو جیسس، ہاللویا 7 بار بولو، ہاللویا 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 ہاللویا، چلا کے بولتے جاؤ ہاللویا، ہاتھوں کو لہرا کے تھینک یو جیسس، ہاللویا۔ تعریف کرو زور سے، پیچھے سب تعریف کرو زور سے، ہاللویا ہاللویا۔ سب بیٹھ جاؤ اپنی جگہوں پر، ہاللویا۔ آج اب جیسے آئے ہیں ویسے واپس نہیں جائیں گے۔ اپنے پڑوسی کو، ساتھ بیٹھی بہن کو، ساتھ بیٹھے بھائی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے اپنی طرف متوجہ کر کے بولیں کہ آج آپ جیسے آئی ہو ویسے واپس نہیں جاؤ گی۔ بھائی آج جیسے تو آیا ہے تو ویسے واپس نہیں جائے گا۔ اپنے ایمان سے نبوت کرو اپنے پڑوسی کے اوپر کہ تو جیسے آیا ہے تو ویسے واپس نہیں جائے گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ آج کا ورڈ، آج کا کلام آپ کی لائف کو چینج کرے گا، بڑے چھٹکارے کو آپ کی زندگی میں لائے گا۔ آپ کی زندگیاں سچ میں سیم نہیں رہیں گی۔ آپ یسوع مسیح کی پہچان میں پڑھیں گے، اس کے نام کی قدرت آپ کو چھوے گی، آپ کو آزاد کرے گی اور آپ کو جیسے آپ آئے ویسے جانے نہیں دے گی۔ ہاللویا ہاللویا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ اس کو کھولیں۔ اعمال کی کتاب 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ہاللویا۔ یہ آپ کی فیوریٹ آیت ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو بہت بار پڑھا ہے، بہت بار سنا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ایک ہی نام، اسی لیے کرسچن لوگوں کے لیے اور کوئی دوسرا حل نہیں، اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کو چھوڑ اپنی پرابلمز کا حل ڈھونڈنے کے لیے جب غیر معبودوں کے پاس اور دوسرے ناموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے گھرانے، ان کی نسلیں تباہی کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ ہمارے لیے اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ وہ نام کیا ہے؟ چلا کے بولو، وہ کیا ہے نام؟ ہاللویا۔ آپ کے چھٹکارے کا، آپ کی رہائی کا نام ہے یسوع نام۔ لیکن آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ کیسی زندگی اگر آپ کی ہو تو آپ اس نام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی لائف بائبل کے اس قانون کے مطابق نہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ اس نام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاللویا۔ شاید آپ سوچیں کہ یہ کیسی بات ہے، ہم تو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، میرا تو نام بھی یوحنا ہے، میرا تو نام بھی پطرس مسیح ہے، لیکن میں کیسے یہ نام استعمال نہیں کر سکتا؟ پر آج بائبل کہتی ہے کہ آج خداوند کا روح یہ فرماتا ہے کہ آپ
आज आप इस रेवलेशन को सीख कर जाएंगे कि अगर आपकी लाइफ इस बाइबल के असूल के मुताबिक नहीं तो कानूनन, रूहानी कानून के मुताबिक आप इस नाम को इस्तेमाल करने के हकदार नहीं। हालेलुया। आपने पहली बात जो सीखी वो क्या है कि जमीन के ऊपर आपको एक ही नाम बख्शा गया है आपके छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए। निजात का रास्ता एक ही है और वो है यीशु का नाम। हालेलुया। ताकि आप यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह को पहन लें और यीशु मसीह में अपनी जिंदगी जिएं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि नाम का मतलब, जो असल यूनानी जुबान में नाम का मतलब है, जो नाम के लिए सही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अनोमा। सब बोलो क्या है? और अनोमा को जब इंग्लिश में पढ़ें तो उसके लिए लफ्ज कैरेक्टर है, और उसकी जब तर्जमा उर्दू जुबान में किया जाए तो उसका तर्जमा है किरदार। हालेलुया। तो सिर्फ यीशु नाम मुंह से नहीं बोलकर आप उसके नाम को यूज करके बड़े कामों को देख सकते जब तक आप उसके किरदार को इख्तियार ना कर लें। इसीलिए बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को पहन लो। क्या यीशु मसीह कोई लिबास है? यीशु मसीह एक किरदार है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? एक किरदार है। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों का आज हाल ये है कि वो यीशु मसीह का नाम उन्होंने लिख लिख कर भी लगाया है। वो कहने को भी कि क्रिश्चियन है, मसीही घर में भी पैदा हुए, सालों से उनके शायद बड़े किसी खिदमत के हिस्सा में भी हों, लेकिन उनकी जिंदगी में खुद पर्सनल लाइफ में निजात नहीं। क्योंकि निजात के जो मायने वो है छुटकारा, रिहाई। अगर आप क्रिश्चियन और अभी तक नशा आपसे छुटता नहीं, आपको अभी भी निजात की जरूरत है, जबकि आप मसीही। हालेलुया। आप प्रेयर करते हैं, आपसे प्रे नहीं होती। आप गीत तो गाते हैं पर ताली आपसे खुल के बजती नहीं, आप ताली नहीं बजा के वर्शिप करते। आप बाइबल को पढ़ते नहीं, छुटकारा आपके घरों में नहीं, और आप कहने को क्रिश्चियन है। ऐसे क्रिश्चियन लाइफ आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी, याद रखना। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पहुंचे, और जो खुदा का इलाही मंसूबा उसने आपके लिए बनाया, जो उसने अपने बेटे को भेजा, जो यीशु नाम आपको बख्शा गया, अगर आप उस नाम में जीते नहीं, आपको उस नाम का कोई फायदा नहीं। कितनों को समझ आ रही? अगर आप उस नाम को इख्तियार नहीं करते, उस नाम का जो कि एक किरदार है, जो पाकीज़गी और रास्तबाजी का किरदार है, जिसने अपने बाप की मर्जी को हूबहू पूरा किया। और यीशु ने कहा जैसे बाप ने मुझे भेजा, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा। और अगर आप उसकी बात को मानते नहीं, फॉलो नहीं करते, तो आप कैसे क्रिश्चियन हैं? हालेलुया। यीशु मसीह को पहनना, बाइबल कहती है, अमाल की किताब उसका 19 बाब, आप इसको घर जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबल कहती है कि एक यहूदी के, मैं इसको 13वीं आयत से पढ़ूंगी। देखिए, मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बदरूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु की पलूस मुनादी करता है, मैं तुमको उसकी कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा ही करते थे। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये सरदार काहिन है। हैकल का क्या है? प्रीस्ट है। हैकल का हेड है। हैकल का जो कहते हैं ना, बिशप कह लो, मेन पास्टर है, जिसके अंडर जिंदगी है, जिसके सरदार काहिन। सिर्फ काहिन नहीं, ये शख्स सरदार काहिन है। और उसके 7 बेटे, जिन्होंने जो समझे कि शायद यीशु मसीह का नाम आम ही है, इस नाम को कोई भी यूज करे तो बड़े काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हर कोई, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो आप कितनी बड़ी खिदमत में क्यों नहीं, अगर आपका किरदार खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, और अगर आपने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया, आप नई पैदाइश पाए मसीही नहीं, आप कानूनन इस नाम को यूज नहीं कर सकते, आप इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो रिजल्ट ऐसा होगा, आप बीमारी को कहेंगे, उधर से आप सिगरेट पीते हैं और उधर से आप अपने लंग्स को कहते हैं यीशु के नाम से ठीक हो जा, वो नहीं सुनेगा। हालेलुया। उधर से आप खिदमत करते हैं पर आपकी खुद की जिंदगी में ऐप जो है, जेलसी है, करप्शन है, और फिर आप किसी दूसरे को बोलेंगे यीशु के नाम से चंगा हो जा। ये नाम कुदरत के साथ काम नहीं करेगा आपके वसीले।
हालेलुया। सिकमा यहूदी के 7 बेटे जो कि एक सरदार का है ना, उन्हें लगा कि हम तो ऑलरेडी खिदमत में हैं, तो यीशु नाम का कईयों को लगता है कि हम जो क्रिश्चियन हैं तो हमने तो शायद ठेका लेके रखा हुआ है कि यीशु हमारा ही है, वो तो हम पैदाइशी वो हमारा ही है। खुदा की बात थी, उन्हें लगता है कि शायद हम जब मसीही घर में पैदा हुए तो बादशाही को साथ ही लेके आए हैं। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जितनों ने उसे किसे यीशु को, खुदा के भेजे हुए को कबूल किया, एक्सेप्ट कर लिया अपनी पर्सनल लाइफ में, घरेलू जिंदगी में, अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब पर, हर जगह पर। ऐसा नहीं कि घर में तो आप क्रिश्चियन हैं लेकिन आपकी जॉब पर किसी को पता नहीं कि आप क्रिश्चियन नहीं, आपका किरदार ये बताता है कि आप क्रिश्चियन हैं। बहन जी घर पे तो, ऑल्टर पे तो बहन जी सबसे ज्यादा मुकद्दसा है, लेकिन घर में वो बहन जब बारी आ जाए चुगली करने की और बारी आ जाए किसी के बारे में जेलसी दिखाने की और शरीका निभाने की, तो फिर बहन जी नालों ज्यादा उदो भी मुकद्दस कौन है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का नाम जिसमें कुदरत है, जिसमें ताकत है, जिस नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पास साफ होते, मुर्दे जी उठते हैं। हर एक कायनात की हर एक चीज उसकी सुनती है। बाइबल बताते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी से ऊपर निकल कर आए तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी क्या करो, सुनो। तो सिर्फ इंसानों को नहीं कहा, कायनात के एक एक जर्रे से कहा गया इसकी सुनो। इसीलिए मौसम उसकी सुनता है, हालात उसकी सुनती हैं, बदरूहें उसकी सुनती हैं, बीमारियां उसकी सुनती हैं, हर तरह की सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं हो वो उसकी सुनती है। क्योंकि यीशु नाम में क्या है, क्या है, क्या है यीशु नाम में? कुदरत है, यीशु नाम में ताकत है, सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन अगर वो नाम आपकी जिंदगी में आपने उसको पहना नहीं, अगर वो नाम आपकी जिंदगी से छलकता नहीं, उसका किरदार, नाम यानी कि यीशु मसीह का किरदार आप में से छलकता नहीं, तो आप इस नाम का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप इस नाम का फायदा नहीं उठा सकते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए जब प्रीच किया जाता है, तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, कहते हैं जी हम तो फलां मिशन के हैं, हम तो सालों से वो हैं, हम नहीं ले सकते। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाया। अब सवाल ये है कि आप किसके पैरोकार हैं? क्या आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं? तो आपके यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया। बेशक उसमें कोई गुनाह नहीं था, लेकिन यीशु मसीह जानते थे सालों बाद ऐसे करप्ट लोग खड़े होंगे, ऐसी बिदतें खड़ी होंगी जो मेरे लोगों को नई पैदाइश पाने से रोकेंगे। शैतान उन्हें यूज करेगा ऐसी तालीमों को, वो बपतिस्मा पाने से लोगों को रोकेंगे। क्योंकि अगर आप नई पैदाइश नहीं पाएंगे, आप यीशु का नाम यूज नहीं कर पाएंगे, यीशु मसीह के नाम के वसीला से बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को, खुदा की निजात को, खुदा के उस छुटकारे को अपनी जिंदगी में देखने लगता। आपको लगता है कि शायद वो बादशाह की वो बात की जो आसमान के ऊपर, जहां यीशु मसीह ने कहा बहुत से घर हैं, लेकिन खुदा की बादशाही उसी दिन आपकी जिंदगी में उसकी शुरुआत हो जाती है जिस दिन आप तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं और जितनों ने उसे कबूल किया, इस वर्ड को अपनी जिंदगी में जिंदा कर लेते हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसे यानी यीशु को कबूल किया, उसने, यीशु मसीह ने उन्हें बाप को बाप कहने का हक दिया। जिस तरह से बिना बपतिस्मे के आप आसमानी बाप को बाप कहने के हकदार नहीं, इसी तरह बिना बपतिस्मे के आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करने के भी हकदार नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो नई पैदाइश पाना, बपतिस्मा पाना, ये किसी मिशन की और किसी पास्टर की पर्सनल तालीम नहीं है। आपने अगर बपतिस्मा, मैं एक सवाल कहती हूँ, अक्सर लोग हमारे पास जब आते हैं तो कहते नहीं ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ नहीं आते, पास्टर साहब कहते ने बपतिस्मा लो। पास्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बपतिस्मा लैन ਲਈ कह रहे हैं कि महीने का मेरे घर राशन पाओ, है कह रहे हैं।
तुम्हारी निजात के लिए। वो तुम्हें यीशु मसीह की तालीम दे रहे हैं। अगर तुम बपतिस्मा नहीं लोगे, नए सिरे से पैदा नहीं होगे, तुम आसमान की बात से उसको देख नहीं पाओगे। इस जमीन के ऊपर खुदा की निजात जो उसका बेटा यीशु मसीह है, और उसके मरने, दफन होने और जी उठने की जो कुदरत है, जो ताकत है, उसके जरिए जो ऐसी जिंदगी जो देने के लिए वो तुम्हें आया, उससे तुम कभी भी जी नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए जब मसीही लोग इन बातों को नहीं समझते, वो एक जिंदा चर्च का हिस्सा नहीं बनते, वो एक जिंदा रूह से भरे, आग से भरे खादिम का, पास्टर का साथ नहीं देते, उनकी जिंदगियां हमेशा ऐसे ऐसे बनी रहती है, सिकवा यहूदी के बेटों की तरह। अब इनकी कुछ फहमी ये थी कि हम तो सरदार काहिन के बच्चे हैं, हम तो सरदार काहिन के बच्चे हैं। उन्होंने कहा, बदरू गिरफ्तार से कहा, हम तुझे यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में कसम देते हैं, इस जिंदगी में से निकला वो यीशु जिसकी पालूस मुनादी करता है। हालेलुया। आगे देखो, बुरी रूह ने 15 आयत से, बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा, यीशु को तो मैं जानती हूँ और पालूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? हालेलुया। ये नई पैदाइश पाए हुए नहीं थे, ये यीशु मसीह के पैरोकार नहीं थे, ये पुरानी तालीम, पुराने मजहबी बंधनों में बंधे हुए शख्स के औलाद से, उसके फर्जंद थे ये सातों बेटे, और यीशु का नाम यूज करने के लिए गए। और बदरू भी आगे से होशियार, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ। अब शैतान को निकाल नहीं सकते अपने घर से। अगर सारा दिन आपके घर में वही ड्रामे चलते हैं जो शैतान की प्रोडक्शन है, वही फैशन, वही ड्रामे, वही चीजें आपके घर में चलती हैं, और वो शैतान आपसे कहे, जब आप रात की प्रेयर में बैठे और कहे, शैतान मेरे बच्चियां उछाड़ दे, मेरी लाइफ, अगर सारा दिन तुम मेरे नाम मेल मिलाप करके रखना है, सारा दिन मैं तुझे ऑपरेट करता हूँ, ला दे डंडी, कोई बात नहीं, बोल दे झूठ, कह दे, गपला कर दे, कुछ भी कर दे, कौन सा कोई तुझे देखता है? हालेलुया। अब सारा दिन जब उसको ऐसे की कहते ना, जफ्फा पा के रखे शैतान नु, तब कैसे उसे बोलोगे चला जा? बाइबल कहते हैं शैतान का मुकाबला करो, और किसी ने जफ्फा पा के मुकाबला नहीं होता, मुकाबला आमने सामने होता है, और फासला रख के होता है, और दिलेरी दिखा के होता है। हालेलुया। जो मुकाबला करते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक मन नहीं होते। हालेलुया। तो जब तक आप मसीह यीशु के साथ एक मन नहीं होंगे, आप अपने दुश्मन का, शैतान का, जो आपका दुश्मन है, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। और वो लोग जो यीशु मसीह का नाम, अब सवाल ये है, इसका मतलब हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या यीशु हमारा नहीं है? हाँ, यीशु तुम्हारा भी है, लेकिन अब तुम्हारे पास यीशु मसीह को के नाम को यूज करने का हक सिर्फ इतना है कि तुम उसे निजात के लिए पुकारो। ऐ यीशु नासरी, खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर, मैं निजात पाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है तू ही राहत और जिंदगी है, मुझे निजात दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे रिहाई दे। आज मैं तुझे पुकारती हूँ, तुझे पुकारता हूँ, यीशु मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, मेरी जिंदगी में आ। आपके पास सिर्फ इतना ही हक है कि आप उसे निजात के लिए पुकारें। यीशु नाम को इस्तेमाल करने का आपके पास सिर्फ इतना ही हक है कि आप उसे निजात के लिए पुकारें। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आपको ये समझ आएगी तो मेरा ईमान है कि आप जल्द खुदा के खादिम से मिलकर आप कहेंगे कि हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। बपतिस्मा आपकी रूह को छुटकारे, निजात के लिए, यीशु मसीह के साथ एक मन होने के लिए। और अगर आपने यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब को पढ़ा हो तो वहां लिखा है, जो कोई पानी से पैदा हुआ, जो कोई रूह से पैदा हुआ, वो हवा की मानिद है। हवा जिधर चाहती है चलती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। क्या आप हवा की डायरेक्शन बदल सकते हो? हवा को रोक सकते हो? हवा रुक जाए, इधर का नहीं इधर का चल, आप उसे डब्बे में बंद कर सकते हो? हाँ या ना? कर सकते हो? नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जो कोई नए सिरे से पैदा हुआ है वो ऐसा ही है, उससे भी कोई रोक नहीं सकता, उससे भी कोई बाउंड नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे हवा जिधर चाहती है वो बढ़ती है, अनलिमिटेड है। तुम जो नई पैदाइश पाए हुए हो, नए सिरे से पैदा हो चुके हो, तुम भी ऐसे ही हो। हालेलुया।
कोई शैतान की ताकत, कोई विरोधी, कोई मुखालफत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम नए सिरे से पैदा हो। और बाइबल में यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 13 में लिखा है, जो नई पैदाइश पाया हुआ है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुआ है? बुलंद आवाज से बोलो, वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ है। अब उसमें इंसान, पहले तो आप अपने माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन उस वक्त आप पानी और रूह से जब आपका जन्म हुआ, आप पैदा हुए, तो आप खुदा से पैदा हुए। और खुदा को कोई लिमिट नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे दूरों नजदीक कोई कैद नहीं। हालेलुया। उसकी एक कोई बाउंड्री नहीं कि बस खुदा इतना ही बढ़ सकता है, खुदा इतना ही जी सकता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम नए सिरे से पैदा होगे, तुम मेरे नाम को इख्तियार करोगे। और मरकज की इंजील 16 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नहीं जो ईमान नहीं लाए। और ईमान वो वाला नहीं, हाँ जी क्रिश्चियन ना, 7 साल सब कुछ चलता है, सूद पे पैसा चलता है, हर तरह की गड़बड़ी चलती है, सारी रस्मों रिवाज दुनिया के तौर तरीकों में जीते, नशाबाजी, नाच रंग, एवरीथिंग, सब कुछ चलता है। और फिर कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो उनके पास, हर किसी के पास नहीं, वो वाला ईमान जो सब कुछ दुनिया के तरीके करके कहते हैं हम यीशु पे ईमान रखते हैं, वो नहीं, जिसने दुनिया को एतबार से अपने आप को मन फिराओ, बपतिस्मा लो, और लिखा उसके बाद वो रसूलों के साथ एक मन हुए, तालीम पाई, रफाकत रखी, लगातार रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल हो गए, बिजी हो गए। लेकिन आज हम चाहते हैं बपतिस्मा, कौन जी बपतिस्मा लेना, ठीक है जी ले लेने, कड़ी बड़ी गल है। लेने के बाद वही तौर तरीके अगर आप नहीं छोड़ेंगे, तो लिखा है रोमियो के खत में और बाकी भी खतों में कि खुदा ने तुम्हें तारीकी से रोशनी में बुलाया है, इसलिए अब जितने गंदे घिनौने और करप्ट काम करने थे जो तुमने पहले कर लिए, उतने ही काफी हैं। अब जो तौबा की है, तौबा का असली मतलब ही है मन फिराना। अगर इधर को जा रहे थे तो अपनी राह को रोक कर इधर को चल पड़ना, तौर तरीके बदल देने। आपके घर वाले सबसे पहले गवाही दे के वाकई इन्हें तौबा की कर ली, घर वाले पास्टर साहब नो आके कंप्लेन कर रहे होंगे ने, पास्टर साहब बदले तो कुछ है नहीं है, बदलिया तो ये कुछ है नहीं। और पिछले दिनों एक भाई मुझे आकर मिले, कहते मैं पास्टर साहब ने बुला के पूछना तुसा भैन से प्रेयर की थी, असं गैर मबूदा को जानती, तुसा क्या कहने बपतिस्मा पा रहे हैं, होली स्पिरिट मिल गया, गैर जुबान का बपतिस्मा हो गया, तो ये तो गैर मबूदों के पास जाती है। मैं पास्टर साहब ने बुला के पूछना, मैं कहा तुसी पास्टर साहब से केस करोगे? पास्टर साहब ने तुम्हें राह राज दिखाई, मैंने कहा कल आप हमारी चर्च में आओ, मैं आपको तौबा की मुनादी करती हूँ, बपतिस्मा ले लो, थोड़े दिनों के बाद वापस अपनी जिंदगी में चले जाना। तो फिर तुमने अपने आप को रोकने और तालीम पे चलना कि पास्टर साहब ने तुम्हारे साथ ही जाना है हर जगह। फिर मैंने कहा आप आकर इधर केस करोगे, इन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था। हालेलुया। आपने छोड़ना है, आपने मेहनत करनी है, मेहनत यीशु मसीह ने आपको मुफ्त में निजात दे दी है, अब आपको निजात पाने के लिए मेहनत नहीं करनी। वो जैसे ही आप तौबा करते, बपतिस्मा लेते, यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते, निजात आपको मुफ्त में मिल जाती है। लेकिन निजात को साथ में बने रहने के लिए आपने एसी ले लिया, खरीद लिया, आपने आपके बाप ने आपको ऐसे गिफ्ट में दे दिया, आपने उसके लिए कोई कीमत नहीं अदा की, वो आपको इनाम में मिला है। ऐसे ही निजात आपको इनाम में मिली है। लेकिन अब आपको अगर उस एसी की ठंडक चाहिए तो आपको उस कमरे में जहां आपके बाप ने आपको एसी लगवा के दिया, आपको कमरे में टिकना पड़ेगा कि जितने जाओगे उतने एसी पीछे पीछे आएगा। कितनों को समझ आ रही? ऐसे ही है। आप अगर उस निजात को जो आपने पाई है, उस इकरार को जो आपने किया है, वो जो तालीम आपको चर्च से मिली है, अगर आप उसे रौंद कर, रिजेक्ट करके, उसको मानने से इनकार करके खुद उन राहों की तरफ चल पड़ेंगे, तो फिर पास्टर साहब क्या कर सकते हैं? लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने के लिए
روٹی توڑنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے مشغول ہوئے. اور اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو وہی لوگ جو ان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ جڑے, انہوں نے رسولوں کے ساتھ ایک من ہو کر منادی کی. انہوں نے اپنے گھر بیچ کر, ابتدائی کلیسیا نے اپنے گھروں کو بیچا, اپنے فائننس کی پرواہ نہیں کی, بینک بیلنس خالی کر دی, پراپرٹیز بیچ دی انہوں نے, اور انہوں نے لا کر رسولوں کو دی کہ پرچار کیا, جو کروسیڈ کراؤ, جاؤ اس علاقے میں منادی نے, وہاں یسوع نام کو کوئی نہیں جانتا, لوگ وہاں یسوع نام کو جانے. وہاں لنگڑے بہت ہیں, اس نگر میں بیماریاں بہت ہیں, وہاں کے لوگ آزاد ہونے چاہیے. ہم پیسے دیتے ہیں, ہم اپنا بیج بوتے ہیں, لیکن آج اگر چرچ میں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ کروسیڈ ہے, لو جی پاسٹر صاحب پھر کبھی کہتے ہیں دہی کی دو, کبھی کہتے ہیں بیج بو, کبھی کہتے ہیں جی یہ کام کرو, کبھی وہ کام کرو. کس خدا سے پیار کرتے ہو آپ, اور کس یسوع نام کو استعمال کرنے کا دعویٰ کرتے ہو آپ, کیونکہ آپ اس کے لیے جیتے نہیں ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو نجات مفت میں ملی ہے, آپ نے نجات ان تک لے کے جانی ہے جو ابھی تک یسوع نام کو جانتے نہیں. اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ یسوع نام کو ہی جانتے ہیں لیکن اس کی سامت, اس کی قدرت کو نہیں جانتے. وہ اس یہودی کے بچوں کی طرح ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک فارمول ہے, کسی پہ بھی بول دو, شراب پی لو, سب کچھ کر لو اور بول دو یسوع نام سے ہو جا بھائی. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ آپ کی لائف, آپ کا اگر کردار نہیں, یسوع مسیح کا نام آپ میں سے دوسروں کے لیے کام نہیں کرے گا. اس نے بدرو کہہ رہی ہے یسوع مسیح نو بھی جاننے ہیں, تے پلوس نو بھی جاننے ہیں, اپنے آپ بتا تو کون ہے. ہم تجھے جانتی ہیں, تو ہر روز کتنا کرپٹ ہے, کتنا تیری میری کتنی سنگتی ہے, اور تو مجھے جانے کے لیے کمانڈ کرتا ہے. بائبل کہتی ہے اس نے بدروس پر جھپٹ پڑا, وہ شخص اس کے کپڑے پھاڑے, ان کو بے عزت کر کے بھیجا. اور بائبل کہتی ہے تب یسوع نام کی بڑی بزرگی ہوئی اس پورے نگر میں, ارد گرد کے علاقوں میں. یسوع کا نام آپ کو بخشا گیا ہے, لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے کردار میں جیتے نہیں, یسوع مسیح نئی پیدائش آپ نے نہیں پائی, تو قانوناً روحانی قانون کے مطابق, بائبل کے اصولوں کے مطابق آپ یسوع نام کو استعمال کرنے کے حقدار نہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے وہ لوگ جو بپتسمہ تو نہیں لیا, توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, لیکن دن میں کوئی 10 بار ہے ہمارے باپ ضرور پڑھتے ہیں. پر بائبل کہتے ہیں جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب دوسرے کتنے نے, وہ سب لے کھیتے نے, انہیں سب نو گمراہی تو باہر آن دی ضرورت, ان سب کو تعلیم کی, اور ضرورت ہے کہ وہ نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئیں. اسی لیے آپ کو آج ضرورت ہے, یہ بات یاد رکھنا. جیسے کرونا کے ٹائم میں لوگ ڈھونڈتے تھے نا کہ ہمیں کوئی ایسا ہاسپٹل, کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے جس کے پاس مشینیں اویلیبل ہوں کہ ہماری سانس کو بحال کرنے کا انتظام ہو سکے. آنے والے ٹائم میں جس طرح سے شیطان تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور تاریکی کا زور بڑھ رہا ہے, زندہ چرچے اور روح سے بھرے خادموں کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی کرونا کے ٹائم میں ان نیبولائزر کرنے والی یا سانس دینے والی مشینوں کی ضرورت اور ان ڈاکٹرز کی ضرورت تھی نا, اتنی ہی زیادہ زندہ چرچز کی اور آگ سے روح کے بھرنے ہوئے خادموں کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک زندہ چرچ کا حصہ بنے, جو خدا کے روح سے بھرے پاسبان آپ کے لیے محنت کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں. ہاللیلویا. بیداریاں ایسے نہیں آئیں کہ تسی اپنے بٹوے چو صرف 10 روپے کا نوٹ کر دو, کبھی کوئی بڑا نوٹ تک نہ نکالو خدا کے کاموں کے لیے. کہو کہ جی بیداری نہیں ہوندی, بیداری آپ لاؤ گے. ہاللیلویا. ابتدا کہیں نہیں لکھا رسولوں نے, رسولوں تو جب رسول یسوع کے پیچھے تھے وہ تو اپنا پہلے ہی سب کچھ چھوڑ چکے تھے, لیکن اعمال میں نہیں ہمیں ملتا رسولوں نے پھر اپنا زمین چرچ, اپنا گھر بیچ دیا. وہاں کلیسیا کا ذکر ملتا ہے, لوگوں نے اپنی زمینیں بیچی, لوگوں نے گھر بیچ دیے, اور خدا نے بھی اگر آپ دھیان سے پڑھو تو ان کو بنا گھر کے رہنے نہیں دیا, انہیں سپر بلیس کیا, انہیں اور پراپرٹیز کے ساتھ بلیس کیا. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارا خدا کسی کا ادھار نہیں رکھتا. آپ بوئیں گے آپ کاٹیں گے یسوع مسیح کے نام میں. آج جتنوں نے محنت کی ہے, خدا کے خادم نے جو پریز کی ہے, محنت کی ہے, جتنے ان کے ساتھیوں نے محنت کی ہے, آپ پھل پائیں گے یسوع مسیح کے نام میں. آج جتنی زندگیاں اس ارینجمنٹ کے دوارا
کلام کو سن رہی ہیں, اس مکاشفے سے واقف ہوئی ہیں, آپ کی زندگیاں سیم نہیں رہیں گی یسوع مسیح کے نام میں. یسوع کا نام قدرت کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ میں جو نام, جس نام کی آپ کی پہچان ہے, کون ہے یہ مسیح ہیں, یسوع کے پیروکار ہیں, تو یسوع مسیح کو فالو کرو. مت دیکھو فلاں کہتا ہے جی لینا چاہیے, نہیں بائبل پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے بائبل؟ بائبل وہ جڑی اتنے کپڑے سے بلیٹ کے رکھیے نا, ذرا میں باہر کڈو. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ میرے شوہر خدا کے خادم ہیں, میں ان کی بائبل کبھی نہیں پڑھتی, میری اپنی بائبل ہے. آپ سب کی اپنی پرسنل بائبل ہونی چاہیے کہ کپڑے خرید کے اندر نہیں چلو ایک دو سوٹ سمائیں سارے پالیں گے. ہر کسی کو اپنا چاہیے. بائبل بھی آپ کو اپنی خود کی چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کو لو, اس کو پکڑو, کپڑے سے نکالو, اس کی دھوڑ مٹی جھاڑو ذرا, تاکہ آپ کی زندگیوں کی دھوڑ مٹی جھڑ سکے, آپ کے ذہن کلیئر ہو سکے, آپ کی روح کے اوپر جو گندگی ہے, جو دھوڑ مٹی چڑھی ہوئی ہے گمراہی کی, اس سے ذرا باہر آؤ. بائبل کو پڑھو. اپنے پڑھے لکھے بچوں کو صرف یہ نہیں کہیں کہ چل ٹیوشن جلدی جا, تو نے ڈاکٹر بننا ہے, تو نے یہ بننا ہے. اسے بولو تو نے ایک اچھا مسیحی بننا ہے. آج تو نے بائبل پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ سختی کرو اس پہ, ڈنڈی پکڑو کہ تو نے بائبل کیوں نہیں پڑھی آج. ہاللیلویا. تب وہ جانیں گے کہ ہمیں بپتسمہ لینا ہے. یہ یسوع نے کہا, ہم یسوع کے پیروکار ہیں, کسی فادر کے, کسی پاسٹر بشپ کے پیروکار نہیں. ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. بنا گناہ کے ہوتے اس نے بپتسمہ لیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنے والے ٹائم میں جب لوگ روکیں گے تو جو میرے سچے پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے مینوں نہیں سمجھ, آپ کی سمجھ کم ہے نا, کوئی بات نہیں, آپ گمراہ ہیں نا, کیا کریں, کوئی یہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے. یسوع مسیح نے آپ ہی کے لیے بنا پاپ کے, بنا گناہ کے بھی بپتسمہ لے لیا, تاکہ آپ جیسے جو سادے اور جو بھٹکے ہوئے نا, وہ صرف یسوع کو فالو کر کے بپتسمہ لے لیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہی آپ کا چھٹکارا ہے. وہی کلام آپ کا چھٹکارا ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, اپنی آنکھوں کو بند کرو, تھینک یو جیسس بول کر کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس کلام کے اوپر غور کرو جو آپ نے سنا. کہو کہ باپ میں تیرا تھینکس کرتا ہوں, تھینکس کرتی ہوں, میں تیری شکر گزار ہوں, کیونکہ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے, وہ بزرگ ہے. اور میں اگر یسوع کو قبول کر کے بپتسمہ لے کر ہی اسے استعمال کر سکتی ہوں. مجھے یہ یسوع نام چاہیے. اپنے آپ سے بات کرو کہ مجھے یہ یسوع نام چاہیے تاکہ میں اپنی بیماریوں کو نکال سکوں, میں شیطان کو اپنی زندگی سے, اپنے گھرانے سے نکال سکوں, میں اپنے حالاتوں کو بدلتا ہوا دیکھ سکوں. مجھے یسوع نام میری زندگی کے لیے چاہیے. ہاللیلویا. لیکن اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. آپ کو بپتسمہ, پانی کی ڈبکی والا بپتسمہ لینا پڑے گا جو رسولوں نے بھی دیا. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس, تھینک یو جیزس. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کلام کے لیے تھینکس کرو خداوند کا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو کہ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں آج تیرے اس کلام کے لیے. یہ کلام میری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. شیطان کی طاقتیں اس کلام کو میری زندگی سے چرا نہ سکیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں سبھی. ہاللیلویا. اور وہ لوگ جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, توبہ نہیں کی زندگی میں پہلے کبھی, اور پانی کے ڈبکی والا بپتسمہ نہیں لیا, اگر آپ یہاں پر ہیں تو آج بائبل کہتی ہے آج نجات کا وقت ہے, آج قبولیت کا وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم کل توبہ کریں گے, ہم پھر توبہ کر لیں گے, یا ہم پھر بپتسمہ لے لیں گے. ہاللیلویا. آپ کو آج ہی یسوع مسیح میں شامل ہونا. جتنے بھائی, جتنی بہنیں, کسی بھی عمر میں آپ کیوں نہیں, آپ 12 سال 14 سال کے بھی ہیں تو آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں. آج دور ایسا ہے کہ 8 سال کے بچے کو سب پتہ ہے, اس کو اچھائی برائی کے انٹرنیٹ پہ اس کو سب پتہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے نجات دہندہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ہاللیلویا. 10 سال کے 12 سال کا بچہ اگر
गलत सलत ड्रामे और फिल्में देख सकता है, तो वो बपतिस्मा लेके निजात के इस पैगाम को भी कबूल करके मसीह यीशु में भी जी सकता है। उसे 18 साल का इंतजार ना कराएं, मेरी ये सलाह है आपसे। हालेलुया। कि वो 10 साल से लेकर 18 तक 8-9 साल खूब गंदगी में गुजार ले, जरा राज्य के पाप कर ले, फिर उन्हें तौबा करवावांगे। कुछ तरीकों को आपको बदलना पड़ेगा। आपके बच्चे 10-12 साल के भी क्यों नहीं, आप उन्हें मसीह यीशु के बारे में बताएं। 12 साल, 14 साल, 13 साल में उन्हें बपतिस्मा दिलवाएं, खुद लेके जाएं। पास्टर साहब इसे बपतिस्मा दीजिए, इसे मसीह यीशु की तालीम दीजिए, इसे शागिर्द बना ले चर्च में। हालेलुया। ये आपका बैग पकड़े, ये आपके साथ माइक सीधे करे, आपके साथ दरियां बिछाए, जैसी संगति में रहेगा वैसा रंग इस पर चढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके एक चीज है, सबसे पहले वो लोग जो अपनी जिंदगी में तौबा करना चाहते हैं, अगर आपने पहले से बपतिस्मा लिया लेकिन जिंदगी यीशु मसीह के किरदार के मुआफिक नहीं, तो आज आप तौबा कर सकते हैं। पर बपतिस्मा एक ही बार होता है, तौबा आप फिर से कर सकते हैं जब गुनाह हो जाए। तो आप अपनी हाथों को उठा सकते हैं, आज यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करें, जीवन उससे दें, जिंदगी उससे दें, वो वाली नहीं जो आज तक पहले वाली थी जिससे तो सारा कुछ चलता भी थी, प्रेयर में भी मन कहीं और लगा, ऐसा नहीं। सच्चे दिल से रेल वाली तौबा जिसमें आपकी जिंदगी बदल जाए। लिखा है रेडिकली चेंज लाइफ, राहें बदल जाए, सोच पहनावा तक आपका बदल जाए। हालेलुया। सब कुछ जिसमें बदल जाए उसको कहते हैं तौबा। सच्ची हकीकी तौबा जो आपकी लाइफ में रिजल्ट को लेके आती है, जो बदलाव को लेके आती है, जो बड़े मौजूदों को आपकी जिंदगी में लेके आती है। तो आज मौका है कि आप तौबा करें। और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, खुदावंद का रूह ये फरमाता है कि आज आप आगे आओ, अपनी जिंदगी मसीह यीशु को देके जाओ, क्योंकि जब तक तौबा नहीं करते मौजज़ा नहीं पा सकते। इसके बाद बीमारों के लिए और आपके लाइफ के लिए प्रेयर होगी कि आपकी जिंदगी सेम ना रहे, आप अपने मिरेकल को रिसीव करें, लेकिन उससे पहले आप तौबा करें। हालेलुया। हाथों को उठाएं और आंखों को बंद नहीं करना। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन समझते हैं, ये आपके लिए एक हुक्म है, कमांड है खुदा के मज़बा से कि आपने आंखें नहीं खोलनी। पहले तौबा करने के बाद भी आपने जब अगर मौजज़े को पाना है, हाथों को उठाए रखना है, आंखों को बंद करके यीशु मसीह को देखना है, उसके उस नाम को जो आला है, जो आपकी जिंदगी को आज बदल सकता है, आपको रिस्टोर कर सकता है, उस नाम की तरफ तकना है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप में से कोई, मैं लास्ट ये कॉल करूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रेयर में। अगर आप में से जितने नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु को देना चाहते हैं तो आगे आइए, तौबा करें।